Hello, future officers. Welcome to Decoded once again. Today we are going to take up the discussion on Polity Test Assignment 2. This assignment is based on the PYQ themes which UPSC has already asked and the topics of polity relating to those themes which were there in current affairs. This has been taken because the UPSC has an habit of asking the questions which they have already asked. They keep on repeating those themes again and again, and if something related to that theme is there in the current affair, they are definitely likely and most probably to pick up those things because their inspiration would be current affair. When they will be seeing something somewhere that is a current affair, from there only they will be picking that up now, right? So the part 1 to this we have already done. So according to my expectations, I think a question can come from these 18 questions. If you take part 1 and part 2 of the videos, the 18 questions and the PYQ themes that we have already discussed, the question can come from them. If you are into revision mode, you must be in revision mode by now. So you can do one thing is that in the lecture on the test assignment 1, I have discussed the PYQ themes, how you have to study that, and then you can see the solution to test assignment 1 and 2, and then I think you will be able to solve most of the questions which would be asked from the concept of polity. Okay, with this, we would like to begin our discussion. So the first question is about directive principles of the state policy. This is one of the very favorite topic of the UPSC. They ask this in comparison to either fundamental rights or fundamental duties. Okay, so let's start the question. With the reference to the directive principle of state policy mentioned in the Constitution of India, consider the following statement. Directive principles of the state policy limits the legislative function of the government? No, they cannot do that because they are not justiciable in the court of law. You can limit anything when that provision can be justiciable. मतलब against that provision you can go to the court. अगर legislature ने कोई law बना दिया और उस law के against आप जब तक court नहीं जा पाओगे तो वो कैसे limit करोगे आप, ठीक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिमिट द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते कभी भी। तो अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट में, अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हिंडर कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट में कोर्ट के अंदर केस फाइल नहीं कर सकते हो। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिफिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये बिल्कुल ठीक है। सो दे कैन नॉट लिमिट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के कोई भी फंक्शनिंग से प्रॉब्लम हो रही है और क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को वो डीपीएसपी को वो इन्फ्रिंज कर रहा है, तो आप उसको लिमिट कभी कर सकते हो जब आप कोर्ट में जा सकते हो उसके अगेंस्ट। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उनके अगेंस्ट आप कोर्ट में कभी जा ही नहीं सकते, तो आप लिमिट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। अब हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं डीपीएसपी के बारे में। इन ही चीज़ों में से जनरली क्वेश्चन ये पूछता है डीपीएसपी के अंदर, ठीक है, जो भी हम डिस्कस करेंगे। और बाकी आर्टिकल्स जो हैं कि अलग अलग टाइप के डीपीएसपी से रिलेटेड, जो कि जैसे सोशलिज्म से रिलेटेड डीपीएसपी हैं, जो नेहरूवियन से रिलेटेड डीपीएसपी हैं, जो गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड डीपीएसपी हैं, जो नियो लिबरल डीपीएसपी प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए। बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। डीपीएसपी आता कहाँ से? डीपीएसपी आता है पार्ट 4 से, ठीक है। ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है डीपीएसपी, उन्होंने खुद स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डीपीएसपी बात करता है वेलफेयर स्टेट के बारे में। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हर एक आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो भी सरकार के पास रिसोर्सेज हैं वो सबको इक्वली अवेलेबल हो पाए, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मतलब जैसे जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजंस देती है कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को, कुछ कैटेगरी ऑफ पर्संस को। किसी कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, कोई दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एससी एसटी से या ओबीसी से बिलोंग करता है, तो उनको स्पेशल प्रोविजन देती है ना सरकार। तो वो तो मतलब आगे मतलब वो ही डीपीएसपी के अंडर आता है कि आप, क्योंकि वो लोग जो हैं वो समाज के अंदर उनकी पोजीशन इक्वल नहीं है अभी भी,
तो उनको और अपलिफ्ट करने के लिए जो सरकार है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाती है, वो डीपीएसपी के अंदर रहेंगे। ठीक है। अब आता है आपका आर्टिकल 38A, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट को एक सोशल ऑर्डर प्रमोट करना है जिससे जो आदमी है, इंसान है, उसका वेलफेयर इंप्रूव हो सके, मतलब हर कोई एक सेम लेवल फील्ड में आ सके। ठीक है, लोग बराबरी के दर्जे पर आ सके, ये डीपीएसपी का मेन पर्पस होता है। अब आगे चलते हैं। डीपीएसपी जो है वो कोर्ट में जस्टिसिएबल नहीं है। आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि मुझे ये डीपीएसपी नहीं मिला। ठीक है, ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब डीपीएसपी आए हमारे पास, तब कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे। तो जैसे जैसे कंट्री के रिसोर्सेज इंक्रीज होते जाते हैं, तो डीपीएसपी को हम फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट करते जाते हैं, मतलब हम जस्टिसिएबल में लाते जाते हैं। जैसे कि पहले जो है राइट टू एजुकेशन एक डीपीएसपी था, पर अब वो फंडामेंटल राइट है, क्योंकि सरकार के पास अब पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को प्रोवाइड कर सके। ठीक है। और दूसरा क्या है कि सोशो कल्चरल कंडीशन जो है ना कंट्री की, वो ठीक नहीं थी। मतलब रिलीजियस डिफरेंस थे, सोशल डिफरेंस थे। अगर समझ लीजिए आपको पूरी कंट्री में सेम चीज लेकर आनी है, जैसे कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लीजिए, पर हर रिलीजन, इंडिया में हर रिलीजन का अपना एक खुद का वो है, कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे कि आप इस्लाम के अंदर देखें, उनका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, सिखिज्म में अलग होगा, हिंदुइज्म में अलग होगा। ठीक है। तो जब तक वो सोशो कल्चरल कंडीशन एक सेम लाइन पे नहीं आ जाएंगी, जब तक हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के लोग ये नहीं समझेंगे कि हम एक ही कंट्री के हैं और हमें एक ही तरीके से, और हमारा हर एक मैरिज के अंदर, डाउरी के अंदर सेम टाइप का सिस्टम फॉलो होना चाहिए, जब तक वो सोशल कल्चरल कंडीशन एक पैरिटी पे नहीं आ जाएगी, तब तक उस डीपीएसपी को आप सबको फंडामेंटली एक राइट की फॉर्म में नहीं अवेलेबल करा सकते। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अब आगे चलते हैं। फर्दर जो डीपीएसपी है वो आपको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देता है, और फंडामेंटल राइट आपको देते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है। अब जो डीपीएसपी वो नॉन जस्टिशिएबल है वैसे तो, और गवर्नमेंट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि उनको वो पूरा ही करना है, बट एक मॉरल बाइंडिंग है कि मतलब एक गिल्ट आता है गवर्नमेंट के अंदर, अगर उन्होंने जब गवर्नेंस करने के लिए जो लॉज बनाते हैं, उसमें अगर उन्होंने डीपीएसपी को कंसिडर करते हुए लॉ नहीं बनाए, तो वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन सी आ जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो जो पिछला वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए, उसके अंदर सुधार करने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है। अब ये तो हो गया इतना। अब डीपीएसपी आप खुद पढ़ लें, बाकी जो भी है आर्टिकल्स वगैरह, हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से कौन से नए डीपीएसपी एक्ट को है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे। तो 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उससे डीपीएसपी एक ऐड हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। मतलब सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जस्टिस के लिए और फ्री लीगल एड के लिए। ठीक है, इसी के लिए नालसा आता है हमारे पास। टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आता है आर्टिकल 48A में। फिर राइट ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आता है आर्टिकल 43A में। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हैं। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, ये आते हैं आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 4 नए डीपीएसपी। अब हम बात करते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है वो कौन कौन से है। ये आया आपका आर्टिकल 38 क्लॉज 2, स्टेट शैल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम। मतलब स्टेट को काम करना चाहिए जो लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज है इनकम की, उसको खत्म करने के लिए। जैसे कि पैरिटी होनी चाहिए, मेल और फीमेल जो भी काम कर रही हैं, मेल और फीमेल जो भी काम कर रहे हैं, उनको इक्वल पे मिलनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए, पर ऐसा नहीं होता है। अगर एक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर भी होता है, उसके अंदर भी मेल को ज्यादा पैसे मिलते हैं, फीमेल को कम मिलते हैं। बहुत सारी कंपनीज में भी ऐसे होता है कि मेल को ज्यादा पैसे मिलते हैं, फीमेल को कम मिलते हैं। तो स्टेट को स्ट्राइव करना चाहिए इनइक्वालिटी जो इनकम है उसको खत्म करने के लिए। फिर आता है आपके पास 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इससे जो आर्टिकल 45 था पहले, जो डीपीएसपी था कि आप कोशिश करो कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करो। अब क्या हुआ कि कंट्री, हमारी इंडिया जो है प्रोग्रेस हुई, फिर रिसोर्सेज आ गए, तो जो आर्टिकल 45 के अंदर जो स्टेटमेंट थी उसको हमने फंडामेंटल राइट बना दिया, मतलब राइट टू एजुकेशन दे दिया कि 6 से 14 साल के सारे बच्चे हैं, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए।
और उसकी जगह आर्टिकल 45 में हमने नया आर्टिकल ऐड कर दिया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले लोगों को, बच्चों को, और एजुकेशन टू ऑल अंटिल 6 इयर्स ऑफ एज। जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले और एजुकेशन सभी के लिए अंटिल एज ऑफ 6 इयर्स। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए तो आपको पता ही है, मतलब आशा वर्कर्स का यूज होता है, मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट हैं उनके अंदर भी आ जाते हैं ये। ठीक है, तो अब आगे है 79th अमेंडमेंट एक्ट, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसके थ्रू आपका आर्टिकल 43 बी ऐड हुआ है, जिसके अंदर से आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो है कभी कभी टकराव चलता है, तो कौन सा प्रेसिडेंस करेगा दूसरों को? वैसे तो फंडामेंटल राइट ही प्रेसिडेंस करता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि दोनों के बीच में हारमोनियस नेचर मेंटेन होना चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो कि कोई भी किसी को सुपरसीड करे। तो एक जजमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ था कि आर्टिकल 39A और 39B, सिर्फ यही दो फंडम डीपीएसपी ऐसे हैं जो प्रोसीड कर सकते हैं आर्टिकल्स 14 और 19 को, और बाकी डीपीएसपी कोई नहीं कर सकता। आर्टिकल 39A और 39B जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब उनको ज्यादा तवज्जो मिल सकती है आर्टिकल 14 और 19 से, जो कि फंडामेंटल राइट के पास। ठीक है, अब ये हमारा डीपीएसपी का क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर इलेक्शंस ऑफ इंडिया का, जो कि इलेक्शन ऑफ लोकसभा का, या फिर जो कि पीवाईक्यू का थीम है, और करंटली अभी लोकसभा इलेक्शन हुए हैं 18th लोकसभा के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला है, इफ आर्टिकल 329B इज इन्वोक द पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरवीन इलेक्टोरल प्रोसेस लिमिटेड। ये बिल्कुल ठीक है। अगर आर्टिकल 329B आ जाता है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 329B को इवोक कर देती है, जिससे कि जो जुडिशरी की पावर है इलेक्शंस में इंटरवीन करने की, वो लिमिट हो जाती है। ठीक है, even if article 329B is invoked, the election of the parliament or state legislature cannot be questioned। ये गलत है। अगर ये आर्टिकल इन्वोक हो गया ना, तो आप जो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के जो इलेक्शन चल रहे हैं, आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। ये कैन बी बोल रहा है, कैन बी क्वेश्चन, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन। इफ आर्टिकल 329B इज इन्वोक्ड, इलेक्शन शैल बी क्वेश्चन ओनली थ्रू। अगर वो इन्वोक हो गया है तो जो इलेक्शन है वो कैसे क्वेश्चन हो सकता है? शैल बी क्वेश्चन ओनली थ्रू इलेक्शन पिटीशन फाइल्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ मेड बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। इलेक्शन पिटीशन जो है ना, वो डालनी पड़ेगी आपको, और वो भी उस तरीके से डालनी पड़ेगी जो एक लॉ बनाया हुआ हो लेजिस्लेचर ने। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते कोर्ट के पास। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डज नॉट मेंशन एनी प्रोसेस ऑन हाउ वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन कैन बी चैलेंज। ये मेंशन करता है, इसका जो सेक्शन 80 है वो मेंशन करता है कि जो अगर कोई इलेक्शन हो चुका है उसकी वैलिडिटी को कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है, मेंशन करता है। इन रेफरेंस टू द पिटीशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन टू द ओरिजिनल जुरिडिक्शन लाइज द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है तो सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है इलेक्शन के केस में वो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के पास लाई करती है। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बारी पूछता है जहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कंपेयर करने की कोशिश करता है यूपीएससी। तो आप याद रखना कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, अगर आपको कोई भी इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज करना है तो वो हमेशा सबसे पहले आप हाई कोर्ट में ही जाओगे, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। इलेक्शन पिटीशंस आर फाइल्ड रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट एंड दे हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो आप। अगर आपको हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो फिर जो आप नेक्स्ट अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो। द इलेक्शन पिटीशन जो है ना, जो इलेक्शन की पिटीशन है, जो जिसने जो चैलेंज करने की पिटीशन है, वो कौन फाइल कर सकता है? वो कोई भी कैंडिडेट फाइल कर सकता है, और इलेक्टर रिलेटेड टू द इलेक्शन पर्सन, और या तो कैंडिडेट फाइल कर लेगा, इलेक्टर जो भी उस इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो जो अगला है मनी बिल है। मनी बिल जो है वो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, या तो हर साल रिपीट होता है इसका क्वेश्चन, या फिर हर कुछ टाइम में रिपीट होता है। तो पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये पार्लियामेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर आते हैं बिल्स। तो आप पार्लियामेंट के अंदर जो है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वो टॉपिक्स क्या हैं। अगर आप उनको कर लेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा कि आपका जो मार्क्स है वो ज्यादा आ जाए। अब चलते हैं any of the money bill के regarding ये क्वेश्चन है। with respect to money bill introduced in the parliament of India, which of the following statement is correct? Any of the president, speaker of the Lok Sabha,
और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन डिसाइड इफ अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। नहीं, ये नहीं डिसाइड कर सकते। ये डिसाइड कौन करता है कि ये बिल मनी बिल है नहीं है? ये करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। हालांकि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है मनी बिल को प्रेजेंट करने के लिए, पर कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है ये कौन बताएगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा बताएगा। और अगर इसने एक बार ये बता दिया कि ये बिल मनी बिल है तो उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज नहीं कर सकते। ना पार्लियामेंट कह सकता है कि ये मनी बिल नहीं है, ना ही प्रेसिडेंट कह सकता है कि ये मनी बिल नहीं है। अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। आपका आर्टिकल 109 अगर आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोथ द मनी बिल एंड फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली एंड बोथ कैन नॉट बी अमेंडेड बाय राज्यसभा। देखो, दोनों के दोनों जो है मनी बिल और फाइनेंस बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, दोनों मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों। बट मनी बिल को राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती, सिर्फ लोकसभा अमेंड कर सकती है। ठीक है। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कैन हैपन ओनली इन केस ऑफ फाइनेंस बिल एंड नॉट मनी बिल। बिल्कुल, जो फाइनेंस बिल होता है ना, वो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है, तो उसके केस में जॉइंट सिटिंग हो जाती है। पर मनी बिल के केस में कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। अब थोड़ा सा मनी बिल के बारे में बात कर लेते हैं हम। मनी बिल क्या है? मनी बिल की डेफिनेशन आपको आर्टिकल 110 में मिलेगी। अ बिल इज कॉल्ड अ मनी बिल इफ इट एक्सक्लूसिवली डील विद द फॉलोइंग। या किस किस से डील करता है? इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट, पेमेंट इन एंड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या फिर जो एक्सपेंडिचर है ना आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर आपको उसको इंक्रीज करना है तो भी आपको जो बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वो प्रोविजन करने के लिए, वो मनी बिल होगा। द रिसिप्ट ऑफ विड्रॉल और कस्टडी ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ अ स्टेट और अ स्टेट। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे बातें करते हैं मनी बिल के बारे में थोड़ी सी। ये आप चार जो पॉइंट्स हैं इनको याद कर सकते हैं, क्या पता डेफिनेशन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है। स्पीकर डिसाइड्स वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। डिसीजन उसका फाइनल होता है और कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए, मनी बिल में क्या होता है? मनी बिल जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए होती है, किसकी? प्रेसिडेंट की। ठीक है। और वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। अब लोकसभा में बिल आ गया तो जो स्पीकर बताएगा कि ये जो बिल है मनी बिल के अंडर फॉल कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर स्पीकर ने किसी भी बिल को मनी बिल बोल दिया तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने मनी बिल कैसे बोला इसे। ठीक है। नहीं चैलेंज हो सकता वो। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है एंड रिक्वायर्स रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड मनी बिल। राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती, बस सजेस्ट कर सकती है कि ये कर लो या मत करो। लोकसभा के ऊपर है कि वो उसकी वो रिकमेंडेशन को माने या ना माने। और राज्यसभा अपने पास होल्ड नहीं कर सकती है मनी बिल को, उसको 14 डेज में वापस भेजना होगा। अगर राज्यसभा ने 14 डेज तक नहीं भेजा तो वो बिल को पास समझा जाएगा राज्यसभा के द्वारा। अगर 14 डेज तक वो रिटर्न नहीं किया गया लोकसभा को वापस, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया गया है। ठीक है। लोकसभा उस जो रिकमेंडेशन दी है राज्यसभा ने, उसको माने या ना माने, मानकर भी अमेंड कर वो कर सकती है पास, या बिना माने भी कर सकती है। लोकसभा के पास सारा अधिकार है मनी बिल का। ठीक है। राज्यसभा सिर्फ इसके बारे में सजेशन दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। जॉइंट सिटिंग नहीं होती है मनी बिल के लिए कभी भी। ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड द बिल बैक। प्रेसिडेंट मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता, उसको उसके ऊपर असेंट देनी ही पड़ती है मनी बिल के ऊपर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ मनी बिल के, जिसके अराउंड क्वेश्चन हमेशा रिवॉल्व करता रहता है और क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी फाइनेंस बिल और मनी बिल के डिफरेंस के बीच में। ठीक है। फाइनेंस बिल आता है आर्टिकल 117 के थ्रू, वो आर्टिकल 110 के थ्रू आता था। ये कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही है, बस इसमें कुछ जो प्रोविजंस मनी बिल के होते हैं वो होते हैं। जो आर्टिकल 110 में जो डेफिनेशन दी है मनी बिल की, कुछ ऐसे प्रोविजन अगर एक ऑर्डिनरी बिल के अंदर डले हुए हैं तो आप उसको फाइनेंस बिल कह सकते हैं। फाइनेंस बिल को भी ना प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की इंट्रोड्यूस होने के लिए, और ये भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। पर इसके अंदर जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है और राज्यसभा इसको अमेंड भी कर सकती है। और प्रेसिडेंट इसको, जैसे कि आपने पढ़ा था मनी बिल में कि प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं भेज सकता, उसको असेंट देना पड़ेगा। पर फाइनेंस बिल के केस में प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मनी बिल के रिगार्डिंग, और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इन्हीं पॉइंट्स में से जनरली क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल परमानेंट बॉडी है, और ये बनी हुई है कब से? 25 जनवरी 1950 से बनी हुई है। पार्ट
14 of the Constitution mentioned about Election Commission of India? No. Part 15 of the Constitution of India, which consists of Articles 324 to 329, talks about Election Commission of India. ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है छोटे छोटे उठा के कि पार्ट 14 में है, 15 में है, 16 में है, ऐसे करके, ठीक है। या फिर परमानेंट बॉडी है या नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन टू लोकसभा, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा बिल्कुल ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर में भी करता है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस किस के ऊपर इलेक्शन कंडक्ट करता है वो, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो कभी भी ऐसे आ जाए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, नहीं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो आया था आपका, जो पंचायत वाले अमेंडमेंट्स एक्ट आए थे उसके थ्रू आया था, तो वो सिर्फ पंचायत के ही इलेक्शन कंडक्ट कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज 6 years, ये बिल्कुल ठीक है। और 62 years नहीं, 62 years नहीं, 65 years ऑफ एज है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मॉल एक ब्रीफ ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पहली बात तो, और परमानेंट बॉडी है। उसकी कॉम्पोजिशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये 1993 से ऐसा होता आ रहा है, इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है, पर अभी सिर्फ 2 ही हैं। फंक्शन उसके होते हैं डिस्क्वालीफाई करना किसी भी कैंडिडेट को जो डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है टाइमली अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को, ठीक है। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी मेंटेन करना एंड ग्रांट स्टेटस टू नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। एडवाइजरी जुडिक्शन होती है इसकी ऑन मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, इलेक्शन के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन हुए उसमें एडवाइजरी जुडिक्शन दे सकता है ये, ठीक है, कोर्ट्स को बता सकता है कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। ये एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जो डिफरेंसेस होते हैं या उनका मीनिंग क्या होता है उसके रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जो गवर्नमेंट अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करती है और कॉन्स्टिट्यूशन ही उसकी पावर को लिमिट करता है ताकि गवर्नमेंट में टायरनी ना हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो बहुत एब्सोल्यूट हो गई है, कि उसकी पावर अनकंट्रोल्ड हो गई है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इसको पावर कर देता है और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी पावर्स को लिमिट करता है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट हुज पावर आर केप्ट इन चेक बाय द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर दे रहा है और उसकी लिमिट भी कर रहा है, तो उसकी पावर को कौन चेक में रख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सही है। अ गवर्नमेंट वेयर रियल पावर आर वेस्टेड इन द पर्सन इलेक्टेड बाय मेजोरिटी, नहीं। अ गवर्नमेंट वेयर नेशन इज रूल्ड बाय फेडरल स्ट्रक्चर, नहीं। जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर भी हो, ठीक है। अ गवर्नमेंट वेयर द प्रेसिडेंट इज मेयर नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ बातें करते हैं फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म, ये सी का मतलब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा और सुप्रीम लॉ होगा कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अगर जो गवर्नमेंट की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न ही होना चाहिए ना। अगर वो रिटर्न नहीं होगा तो वो बार बार उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी, मतलब हर एक चीज का जो फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर होगी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में, और चेक्स एंड बैलेंस होगी। अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा कि क्या काम एग्जीक्यूटिव कर सकता है, क्या काम लेजिस्लेचर कर सकता है और क्या काम जुडिशरी कर सकती है, और ये चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू होगा कि मतलब जुडिशरी चेक कर सकती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को, और लेजिस्लेचर चेक कर सकती है जुडिशरी के भी फंक्शंस को, क्योंकि जो इम्पीचमेंट है जिसकी वो लेजिस्लेचर करता है तो उससे वो जुडिशरी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रख सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, ठीक है। मतलब ये है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो वो ना एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन लेते हैं वो उनको रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कभी भी अगर ये जो जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो कभी भी वो है एग्जीक्यूटिव को बोल सकती है कि हम तुम्हारा डिसीजन नहीं मान रहे हैं और गवर्नमेंट को डिसॉल्व करते हैं हम, क्योंकि जो लेजिस्लेचर के बंदे हैं उनको लोगों ने अपॉइंट किया है, ठीक है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी आपकी, रूल ऑफ लॉ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और आपके गारंटेड होंगे कुछ राइट्स इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट। और कुछ कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर फेडरल सिस्टम होता है, जैसे कि इंडिया के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज की तरफ। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूपीएससी का, बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 30 मेंबर्स, नहीं।
ये कंसिस्ट करता है नॉट मोर देन 22 मेंबर, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से आते हैं और 7 आपके राज्यसभा से आते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ऑडिट करता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके अंदर 22 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और ये ऑडिट करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये पहले बना, सबसे पहले ये बनी थी कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में मॉन्टेगू चेलफॉर्म रिफॉर्म्स के अंडर। ठीक है। एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। नहीं, एस्टिमेट कमेटी जो है उसके अंदर आपके 30 मेंबर ही होते हैं, पर वो लोकसभा से होते हैं। ये एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करती है, और जो मनी भी है, जो किसी भी एस्टिमेट, किसी भी पॉलिसी के अंदर मनी का एस्टिमेट लिया गया है, क्या वो मनी उसमें ठीक से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका एस्टिमेट लेती है। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है। जो कमिटी ऑन प्रिविलेजेस है राज्यसभा में, उसके अंदर 10 मेंबर होते हैं जिसको नॉमिनेट करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। नहीं, इसमें 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से। इसके अंदर टोटल 22 मेंबर से ज्यादा नहीं होते। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस की बात करते हैं राज्यसभा। ये इन्वेस्टिगेट करती है, एड्रेस करती है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अगर किसी भी मेंबर ने पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं उसको ब्रीच करी है, तो भैया इसको इन्वेस्टिगेट करेगी या फिर उसको बताएगी। और इसमें 10 मेंबर होते हैं जो राज्यसभा में से नॉमिनेट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने पास, जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास आपका 7। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, सिटीजनशिप से क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांस है, क्योंकि सीए बहुत न्यूज में रह रहा है, और अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को नोटिफाई भी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। और इंडियन सिटीजनशिप पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो एक पीवाईक्यू की थीम का क्वेश्चन ही पहले से ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन सिटीजनशिप विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप लाइक यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। नहीं, बिल्कुल गलत है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप जो है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। याद रखिएगा इस बात को, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पूछा भी हुआ है। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, द नेचुरलाइजेशन पीरियड has been reduced from 11 years to 6 years. No, it has been reduced to 5 years. जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, उसके अकॉर्डिंग नेचुरलाइजेशन आपको मिल सकती है अगर आप इंडिया में रह रहे हो 5 साल तक। पहले 11 साल था प्रोविजन वो। ठीक है। अ पर्सन वुड लूज हिज इंडियन सिटीजनशिप इफ ही हैज वॉलंटरी, वुड नॉट लूज, अ पर्सन वुड नॉट लूज, नॉट, जैसे इन शब्दों का ध्यान रखिए हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हुए, क्योंकि कभी कभी आप नॉट नहीं लगा होता उसको नॉट पढ़ देते हैं, और नॉट लिखा होता है उसको छोड़ देते हैं। अ पर्सन वुड नॉट लूज हिज इंडियन सिटीजनशिप इफ हैज वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप अनदर कंट्री। ये गलत है, वो लूज कर देगा। अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। अब अगर आगे बढ़ते हैं, इफ अ पर्सन हैज अ नॉलेज ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन इन 8th शेड्यूल, देन ही मे बी ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप अंडर नेचुरलाइजेशन। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स हैं 2024 के, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी आदमी को जो 8th शेड्यूल में कोई भी एक लैंग्वेज है उसका अगर नॉलेज है, उसे वो लैंग्वेज उसे आती है, तो उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू आप सिटीजनशिप दे सकते हो। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो 2024 के हैं वो नोटिफाई हुए हैं, तो उसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लीजिए। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है सिटीजनशिप लेने की? या तो आप इंडियन ओरिजिन के आदमी हो, या फिर आप एक मैरिड हो इंडियन सिटीजन से, या तो आप माइनर चाइल्ड हो किसी इंडियन सिटीजन के, आपके या तो पेरेंट्स रजिस्टर्ड हैं एज इंडियन सिटीजन, या फिर पेरेंट्स आपके सिटीजन से इंडिपेंडेंट इंडिया के, रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। ठीक है, ये कुछ एलिजिबिलिटी है। अब नेचुरलाइजेशन के लिए क्या है? अगर आपके पास 8th शेड्यूल के अंदर जो भी लैंग्वेजेस है उसमें से किसी भी लैंग्वेज को अगर आप जानते हैं, तो आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल सकती है। फर्दर आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेनी है, तो आपको एक इंडियन सिटीजन से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जो आपके कैरेक्टर को सर्टिफाई करेगा। ठीक है। प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी के लिए आप 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका प्रूफ देने का प्रोविजन दिया हुआ है इसमें। इसमें वीजा हो सकता है, रेजिडेंशियल परमिट हो सकता है, या आधार हो सकता है। ठीक है। ठीक है। आपको एक डिक्लेरेशन भी देनी होगी कि अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है, तो आपकी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अंडर सेक्शन 6B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, एप्लीकेशन इन ई फॉर्मेट टू बी सबमिटेड टू एम्पावर्ड कमिटी थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सेक्शन 6B के अंडर एक ई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी
आपको सिटीजनशिप चाहिए तो इंडिया की, ठीक है, इन रूल्स के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा इसका फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। आर्टिकल 21 से रिलेटेड कुछ भी आता है पूछता है उससे। हमने दो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक तो राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो आर्टिकल 14 और 21 के अंदर आता है, और दूसरा था राइट ऑफ इरेजर, मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन, उसमें से भी कोई आ सकता है। अब तीसरा है पर्सनैलिटी राइट्स। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 पीवाईक्यू थीम है, और करंट अफेयर में अभी हाई कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स पे ऑर्डर दिया है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या जो चैट बॉट्स हैं या फिर जो एआई क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, तो पर्सनैलिटी राइट के लिए ऑर्डर दिया है कि कोई भी एआई चैटबॉट या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बिना परमिशन के किसी भी जो बड़ी पर्सनैलिटी है उसकी वॉइस या कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। अब पर्सनैलिटी राइट है क्या आपका, ठीक है। पर्सनैलिटी राइट होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि आपसे बिना पूछे आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कहीं पे, तो वो आपके पर्सनैलिटी राइट की इन्फ्रिंजमेंट है। ये आपका फॉल करता है आर्टिकल 21 के अंदर, जो के एस पुट्टुस्वामी केस के अंदर ही पर्सनल जो राइट टू प्राइवेसी आए थे उसके अंदर ही फॉल करते हैं। इसके अंदर होगा क्या कि राइट टू प्रोटेक्ट नेम, राइट आपके कुछ इसके अंदर आपको राइट मिलता है अपना प्रोटेक्ट करने का नाम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेज और अदर मार्कर्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, पर अगर आप आर्टिकल 21 का वाइडर रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी के अंदर फॉल कर जाएगा। With this, we are done with some of the important themes and topics of polity, ठीक है। आप इसका लेक्चर 1 देख लो और ये लेक्चर देख लो, उसमें आपको थीम्स की भी डिस्कशन दी हुई है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करें। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इन्हीं थीम्स और इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यूपीएससी की हैबिट होती है पीवाईक्यू और करंट अफेयर को लिंक करने की। तो हमने वही कोशिश करी है यहाँ पर। होप ये वीडियो आपको मेन एग्जामिनेशन जो आपका आएगा उसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाएगी। मुझे तो लगता है कि कर देगी, क्योंकि हमने सारे थीम्स को कवर कर दिया है जो करंट में आए हैं इंपॉर्टेंट वाले, और आपको लेक्चर 1 में थीम्स के बारे में भी डिस्कशन प्रोवाइड कर दिया गया था कि आप रिवीजन करते हुए इन थीम्स को अगर देख लेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे पॉलिटी के। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी फर्दर इसको सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग हार्ड, सक्सेस इज